And again, we wish all the mothers a happy Mother's Day. And today in the presence of God, खुदा की हजूरी में हम चाहते हैं कि जितनी मदर्स हैं आज बहुत सारी empowerment को लेके जाए पवित्र आत्मा की. May you leave today empowered by the Holy Spirit and to do the works that the Holy Spirit wants you to do. Amen. और जितने भाई हैं आज हमारे बीच में, all the fathers, all the brothers, आज आपको स्पेशल ग्रेस के लिए प्रेयर करनी है for the mothers. अब अगर आपकी मदर यहाँ पे नहीं है, that's totally fine. प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक जगह पे नहीं खड़ी रहती, it travels, prayer travels. So if your mother is not here today, your prayers today, you receiving it, will travel to where she is and cover her. Amen? So today is going to be a powerful day. Mothers are the prophets of Zion. Mothers are the prophets of Zion. और जो मदर का सिस्टम है, the system inside of a mother is different from the system inside of a man. I wish my father was here. He would love this. I've always seen हमारे हाउस में मेरे फादर लीड करते हैं. He is the head of the family और मसीह उनका हेड है. लेकिन जो प्रेयर में लीड करते हैं वो मेरी मदर है. और जो प्रेयर करके हमारी फैमिली को आगे करते हैं वो मेरे मॉम की प्रेयर्स है. और हर फैमिली में ऐसा एक एग्जाम्पल होना चाहिए that the mother leads through prayer. Otherwise, your work will be weak. Your foundation will be weak. The mother has a special gift inside of her that makes her very, very strong. Emotionally, mentally, spiritually. और thank God कि हमारे चर्च की सारी मदर्स जो है वो बहुत strong है. Prayer warriors हैं, intercessors हैं. Yes. Thank God that our church, our mothers are very strong. क्योंकि जो मदर स्ट्रांग होती है वो अपने बच्चों को लीडर्स बना सकती है, वो उन्हें राजे महाराजे बना सकती है, वो वर्शिपर्स बना सकती है, वो नबियों को जन्म दे सकती है. हालेलुया. So mothers are very special. Mothers आत्मा में दरवाजे होते हैं. They are gateways in the spirit. अब जानते हो जब खुदा ने आदम को बनाया, कहाँ से बनाया? Where was Adam made from? The dust, right? मिट्टी से. उस बाग में उस टाइम पे शैतान भी था. तो शैतान देखता है, okay, God made man from here. Then God made Eve from where? From the rib? Yes? Okay. So शैतान भी देखता है, the devil's watching, he's like, okay, from the dust, then the breath of life was given. Then she was born, Eve was born from the rib. Okay, so he's watching, that dust is what's producing this. And then one day, Adam and Eve gave birth to a child. And the devil looks and he says, no, आज कुछ different हुआ. आज एक और इंसान आया है, लेकिन वो मिट्टी से नहीं आया, वो आदम की पसली से भी नहीं आया. This next person did not come from the dust. This next person did not come from the rib. This next person came from another gateway named Eve. तो ये क्या सिस्टम है खुदा का? अब शैतान को जब आइडिया हुआ, when the devil sees, okay, so a woman can make another person. A woman is a gateway. All right. That's why women must be stronger in prayer. Because you hold too much inside of you, a lot inside of you. It's a blessing.
God made you special, a portal in the spirit realm. खुदा ने आपको दरवाजा बनाया है. आप सीधा जब एक्टिविटी करते हो तो स्पिरिट रेल्म से नेचुरल तक लेके आते हो. हर वुमेन की जो वूम्ब है, उसकी जो कोख है, बर्थिंग प्लेस आपके जो अंदर डाला है परमेश्वर ने, आप जानते हो वो पहले प्रेयर से शुरू होती है. वो पहले गॉड के कम्युनिकेशन के साथ शुरू होती है. वो पहले ब्लेस कम्युनिकेशन और प्रेयर के थ्रू होती है. I'm going to tell you again, women are prophets of Zion. I want you to open your Bible, यशायाह नबी की पुस्तक, Isaiah chapter 4, verse 4 and 5. Isaiah chapter 4, verse 4 and 5. ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा. तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक-एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों के ऊपर दिन को धूप का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सजेगा और समस्त वैभव ऊपर एक मंडप छाया रहेगा. Amen. When the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion and purged the blood of Jerusalem from her midst, by the spirit of judgment and by the spirit of burning, then the Lord will create above every dwelling place of Mount Zion and above her assemblies a cloud and smoke by day and the shining of a flame fire by night. For over all the glory there will be a covering. Amen? Okay, so women of God, before the New Testament came, Christ already had cleansed the daughters of Zion. So all the prophetesses that you see in the Old Testament, all the women of God, including Deborah, including Abigail, including Bathsheba, all of them, all the mothers of kings, they were all cleansed. You need to understand this, okay? So when you see the Bible, जो women का रोल है बहुत अलग है. अब बाइबल में आप डेब्रा को देखेंगे. पहले हमने क्या देखा है? I'm telling you again, women are prophets from Zion, okay? और क्यों मैं कहती हूँ? Because जो सिय्योन पर्वत के जैसा है, वो सदा बना रहता है. Open your Bible to Psalm 125 verse 1. आपका बेस बना रही हूँ. I'm making your base for this sermon today. It says, Psalm 125 verse 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है. Amen. Those who trust in the Lord, they are like Mount Zion that never collapses but stays still forever. अब जितनी women प्रार्थना करती है, I want you to know something. आप पहले प्रेयर में चीजों को जन्म देते हैं. You give birth first through prayer. If you need a testimony to happen, if you need something to change in your life, you first must give birth to it through prayer. Amen? Again, Prophet Isaiah जब लिखता है, अगर आपको पढ़ना है, it's Isaiah 66, 7, 8, 9. As soon as Zion travailed, she gave birth. नबी लिखता है कि देश एक दिन में बन सकते हैं, नहीं बन सकते, लेकिन जो सिय्योन है, पीड़ा होने से पहले उसने अपनी औलाद को जन्म दिया. Alright? Now you need to take this word spiritually. You have the power to create before the timing allows. Before the timing allows. Your body, your womb is a spiritual birthing place. इसलिए जब आप बात करते हैं, पूरा स्वर्ग उस चीज को सुनता है. Amen. Now let's look at prophetess Deborah. कौन जानता है डेब्रा को? हाथों को खड़ा करें. Do you know Deborah?
Yes? एक बार मैंने वचन दिया था about Deborah in the church. और उस टाइम पे बहुत इस एरिया में बहुत वुमेन प्रीचिंग के अगेंस्ट बहुत इश्यूज हो रहे थे. तो मैंने डेब्रा के ऊपर एक वचन दिया था. It was fire, okay, literally fire over here. And I am not kidding. उस दिन शैतान इतना जल गया था. He was so on flames. Because you know, जब शैतान देखता है कि एक औरत मसीह का प्रचार करती है, एक औरत महिमा करती है, she worships, in hell they hate it when women worship. You know why? Because when God said that the woman's seed will crush your head, Satan, that gave a curse to him forever. तो जब औरत परमेश्वर की किंगडम के लिए कुछ करती है तो शैतान जलने लगता है. लेकिन आप जानते हो उस जलन में आप नहीं जलोगे. आप जानते हो उसमें आप आगे पुश किए जाओगे. वो जो धुआं होगा निकलेगा. The smoke, it will be an alert system in the spirit realm. Alert हो जाएगा कि एक prophetess बनी है. Hallelujah. कुछ बना है यहाँ पे. Something was created. That's why there's smoke. Hallelujah. इसलिए जब इन लोगों को आग में फेंका गया, they were like, ये जल क्यों नहीं रहे? Why aren't they burning in the fire? क्योंकि आग में उनके साथ कोई चौथा था. Hallelujah. There was somebody else in the fire with them. That's how women operate, men operate, people of God operate. Are you understanding me, people of God? Okay. So आज हम प्रेयर के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि औरतें इस चीज को बहुत अच्छा करती हैं. Women do prayer really well. You know why? लोग कहते हैं औरतें बहुत gossip करती है. Gossip. Women gossip. Okay? अब जानते हो ये बुरी बात भी नहीं है. Gossip करना बुरी बात है. But do you know gossip के पीछे क्या लगता है? Stamina. अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब gossip करते हैं ना, हमें क्या करना है? उसको convert करना है. Gossip को convert करना है prayer में. Because औरत के अंदर स्टेमिना है. मैं देखती हूँ men वो किसी चीज के ऊपर प्रेयर कर सकते हैं. 3 महीने के लिए थक गए, नहीं हुआ, लेकिन औरत 3 साल उस चीज के लिए प्रार्थना कर सकती है. नॉन स्टॉप उसके अंदर एक इंक्यूबेशन सिस्टम है. An incubation system. She can take the prayer and she can keep doing it. Why? जब हन्ना को याजक ने देखा, when Hannah was praying, you know she had an incubation system. Natural दुनिया में हन्ना की औलाद नहीं थी, लेकिन हन्ना के अंदर एक incubation system था. In the Bible, in the book of 1 Samuel 1:13, it says हन्ना मन में बातें कर रही थी. Hannah was speaking in her heart. The incubation system of God allows you to talk in your heart. It allows you to talk to God. So when you have all these words and thoughts, आपको convert करना है prayer में. Because God is about to answer something. खुदा किसी ना किसी चीज का जवाब देने जा रहा है. इसलिए औरत का मन भर जाता है, उसके थॉट्स भर जाते हैं. You ever think आप किसी मर्द के साथ बात करो, वो 2 मिनट से ज्यादा सुनेगा नहीं, वो आपको सोल्यूशन बताएगा, ठीक है ये लो. लेकिन औरत बार बार उसको एनालाइज करेगी, तोड़ेगी, सोचेगी, यहाँ बोलना था, यहाँ पे ऐसा करना था, ऐसे लड़ाई करनी चाहिए थी, ये बोलना चाहिए था. Woman dwells on words and thoughts. Why? Because she is made to intercede. She is made to pray. She is made to talk to God and to give birth to her solutions. She doesn't get tired. Hallelujah. She doesn't get tired. So सबसे पहली चीज, prayerful woman के पास क्या आता है? Stamina. A prayerful woman earns stamina. She builds it. She's born with it, but she builds it, the capacity. आप उस चीज को इतना बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने पूरे नेशन के लिए प्रेयर कर सकते हैं. अब बहुतों को लगता है कि when a woman gets married, is her life over? No. When she has children, is her life over? No way. Do you know what the Bible says? बहुत सारी औरतों की calling
उनकी मैरिज में शुरू होती है। डेब्रा लेपिडोस की पत्नी इस्राएल में न्याय करा करती थी। द वाइफ ऑफ लेपिडोस, शी वॉज अ जज, जो रामा और बेथल के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठ के न्याय करती थी। एंड व्हाट शी डिड वाज, उसको औरत की आंखें होती हैं, स्पिरिचुअल आईज। वुमेन हैव स्पिरिचुअल आईज। आज हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, टोन समझते हैं, नो नो नो, दीज आर स्पिरिचुअल थिंग्स। सो शी सीज, फिलिस्तीनियों ने, अगर आप जजेस की बुक को कभी खोले देखे देबरा की कहानी, तो फिलिस्तीनियों ने बेसिकली इस्राएल पे एक तरह का कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इस्राएल पाप में था, तो परमेश्वर ने इस्राएल को फिलिस्तीनियों के हाथों में दे दिया था। तो देबरा सोचती है कि हम उन्हें कैसे आजाद करें अपने लोगों के लिए। व्हाट शुड वी डू फॉर आवर पीपल? द जज सेज, और मैनी जजेस, मैनी प्रॉफिट्स, बहुत न्याय करने वाले। लेकिन एक ऐसी औरत जो प्रेयर कर रही थी, उसने कहा बराक को लेके आओ, जो इस्राएल की सेना का कमांडर है, लीडर। सो शी सेज कॉल बराक, क्योंकि प्रेयर में इस्राएल के विषय में उसको कुछ मिला। आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप कहते हो मेरे छोटे बेटे को बुलाओ, शलोम को बुलाओ, क्योंकि मैंने कुछ देखा है आत्मा में। यस, आपकी मदर कभी आपको फोन करती है, पूछती है मुझे कुछ फीलिंग आई है, मुझे कुछ पता चला है, टेल मी व्हाई? बिकॉज अ मदर इज मेड दैट वे, शी इज प्रोफेटिक। यू थिंक आपकी मॉम अनपढ़ है, उसको पता नहीं, वो सिर्फ इतना पढ़ी है? नो, वो स्पिरिचुअली एजुकेटेड है। Women are not illiterate, they are heavily educated in the spirit realm. They are born with this gift. So she says, call the commander of the army. और वो कहती है go, फिलिस्तीनियों के साथ अब लड़ना है। Sisera is the commander of the other army. We have to go and kill him. So Barak says, देखो ये स्वॉर्ड, तलवार चलाने वाले लोग जो बड़े बड़े वो पहनते हैं, वो बोलता है कि देबरा अगर तू नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो समझता है कि देबरा का जो हथियार है वो प्रोफेटिक है, वो स्पिरिचुअल है। Deborah's weapon is spiritual. I may have a sword, but Deborah has communication with God. Deborah has the presence of God. Hallelujah. That's why you need to be a woman of prayer. That's why your mothers are women of prayer. सब जितने यूथ यहाँ पे हैं, सब लीडर्स हैं। आपकी मदर्स प्रेयर वाली औरतें हैं। Hallelujah. I know your mothers pray because they are giving birth to worshipers and pastors and prophets and apostles. So this is for you to take home. This is for you to take home. This is for you to bless her with. आपको प्रेयर करनी है उसके लिए स्पेशल, क्योंकि उसकी प्रेयर के द्वारा आप यहाँ पे हैं। उसकी प्रेयर के द्वारा आप प्रॉफिट बने हैं। जो मदर्स प्रेयर नहीं करती, उनके बच्चे बाद में जाके एथियस्ट बन जाते हैं। When you don't pray for your children, tomorrow you're going to see them, they're going to say, I'm an atheist, I don't believe in God. No. Before that happens, shape their mind, shape their spirit. So judges और prophets पूरे इस्राएल के बच्चों को मोल्ड करती हैं, उनके ऊपर प्रेयर्स बोलती हैं। और फिर कमांडर को मारने वाला पता कौन था? बराक नहीं था, एक मर्द नहीं था, जाएल, a woman, अपनी बुद्धि के साथ, प्रोफेटिक बुद्धि के साथ उसने मारा। Alright? वापस प्रेयर पे चलते हैं। So when you pray, naturally these things start coming out. Even मर्दों के लिए, आज भाइयों के लिए, for all my brothers, when you pray, say, I want stamina, Lord God, in the spirit. I want stamina in worship. I want stamina in communication with you. May I not get tired. Hallelujah. I'm telling you about the realms of prayer, different levels. दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज है ascension. Ascension मतलब क्या? ऊंचा उठाए जाना। अब ये किसी शारीरिक तरीके से नहीं है, ये किसी घमंड के तरीके से नहीं है।
लेकिन spiritually to be uplifted, spiritually to have more weight. Ascension. Okay? Where are you gonna look? In the Bible, in the book of Hebrews chapter 11, 35. इसमें लिखा है, आप जानते हो लाजर की कहानी को, लाजरस. Everybody know Lazarus? Everybody know the sisters of Lazarus? लाजरस की sisters का नाम क्या था? Martha and Mary, right? These people were very close to Jesus. Very close, friends with Jesus. And they said, when Lazarus died, they said, Lord, if you would have been here, my brother would not have died. And Jesus says, no, this is for the glory of God. ये खुदा की महिमा के लिए है. अब आपको समझना है, औरतें जो प्रेयर करती हैं, बहुत चीजें आपके डिस्ट्रक्शन, आपके बुरे के लिए नहीं है, वो आपकी असेंशन के लिए है, आपके आत्मा की अपलिफ्टिंग के लिए है, आपको टेस्टिमनी देने के लिए है. Many things that are bad that happen to you, storms come, weakness comes, they are to uplift you according to the word of God. Now, जिन बहनों ने अपने भाई को खोया हो, prayerful औरतें जिन्होंने भाई को खोया हो, अब वो कहती है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? Lord, why did this happen that our brother died? And he says, this is for the glory of God. और यही वो औरतें हैं जिन्होंने अपने मुर्दे भाई को जिंदा पाया. बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि औरतों ने अपने मुर्दों को वापस पाया, जिंदा पाया. हालेलुया. प्रेयरफुल औरत असेंशन में क्या कर सकती है? When you're looking higher. You know, डेब्रा रामा में क्यों रहती थी? एलिया रामा में क्यों था? उत्तम जमीन है वो, ऊंची जमीन है वो. Physically, spiritually, you can see more. देखने को मिलता है, higher ground, higher realms. Okay? जब आप ऊंचा जाके प्रेयर में देखते हैं, खुदा पहले अलर्ट करता है आपको. I need this for my city. I need this for my territory. I need you to pray this today. 4 o'clock service, आज ये प्रेयर करनी है. Wednesday Bible study, आज ये वचन देना है. क्यों? क्योंकि आप एक और ऊंचे स्थान से बात करने लग जाते हैं. जब आपकी प्रेयर रहती है बेसिक ग्राउंडेड, गुड है. थैंक यू लॉर्ड, नाइस. से गॉड मूव मी टू द नेक्स्ट डिमेंशन. आपने ऐसे प्रेयर की हो कभी कि आपको आत्मा में धमाके सुनाई देते हैं? कुछ बदल गया खुदा, कुछ हुआ है खुदा, आज मौसम बदला है खुदा. हैव यू एवर प्रेड ऑन अ रेनी डे एंड द सन कम्स आउट? द अर्थ इज रिस्पॉन्डिंग, हेवन इज रिस्पॉन्डिंग, गॉड इज रिस्पॉन्डिंग. यस, असेंशन, uplifting. आत्मा बढ़ रहा है, आत्मा बढ़ रहा है. Hallelujah. That's what you need to get to. This is another realm of prayer that you enter. God, speak to me in this way. जो चीजें समय से पहले जाती हैं, आप उन्हें भी वापस बुला सकते हैं. God, अभी ये टाइम नहीं था, इसको वापस लेके आ. Closeness with God does this. Why? You're closer to the heavens. Lord, I want to speak to you this way. I want to connect to you this way. कभी कभी हम प्रेयर नहीं करते, आपको महसूस नहीं होता खुदा इतना दूर है आपसे. When you don't pray, उसको हमेशा के लिए खत्म करो. मुझे आज भी बात करनी है, मुझे रात को भी बात करनी है, मुझे कल भी बात करनी है. My timetable with God is set. I am speaking from higher dimension. And then when you pray, angels will cross that realm. Hallelujah. स्वर्गदूत आते हैं, आपको वचन सुनाते हैं, आप सुनते हो, आप प्रोटेक्शन को फील करोगे. You will feel the angelic realm opening up to you. This Wednesday, if you missed Wednesday online Bible study, Shalom, you need to attend it. You're going to be a pastor. How do you miss Wednesday Bible study? Listen, what did we talk about? Something to do with ascension. So we spoke about the courtroom of heaven. We spoke about angelology, demonology, okay? So angels or demons, खुदा के दूत और शैतान के साथ जो दूत नीचे चले गए. और हम देखते हैं कि एलोहीम, खुदा,
यूनिवर्स का, हर चीज का मेन सेंटर बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। यस। और फिर उसके साथ आते हैं सेराफीम, एंजल्स, 6 पंखों वाले, वर्शिप करने वाले। फिर आते हैं चेरबिम। चेरबिम कौन है? 4 अलग अलग चेहरे वाले, इंसान का चेहरा, मैन, ऑक्स, फिर अ लायन और ईगल। चेरबिम, ये 4 चेहरे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये पहरे देते हैं, पहरा। जब अदन के बाग से, when Garden of Eden, when Adam and Eve were taken out from the Garden of Eden, a cherubim was set into place with a sword, आग वाली तलवार के साथ उन्हें उससे लगाया गया। ओके। जब लूसीफर की बात होती है, उसकी बात कैसे होती है? In the form of a cherubim. Read Isaiah. Read the book of Isaiah. ओके। फिर आते हैं थ्रोन्स। रीड द बुक ऑफ एज़ेकियल। थ्रोन्स क्या है? थ्रोन्स के व्हील्स होते हैं, उनकी आंखें होती है, ठीक है। थ्रोन्स स्पिरिचुअली एक डिमेंशन को घेरते हैं, वो हायर अथॉरिटी होती है, वो होते हैं जो इंसाफ करते हैं। जिस तरह राजा तख्त पे बैठता है, a king sits on a throne. Throne has authority. It moves and operates in the system of God. Alright? और फिर आते हैं dominions और powers, शक्तियां, हुकूमतें, इख्तियार, ये आते हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल। बाइबल में मिखाइल को बोला गया आर्कएंजल, उसका भी रोल है, वो स्वर्ग की सेना को लीड करता है। फिर आता है एंजल ऑफ द लॉर्ड। द एंजल ऑफ द लॉर्ड एक्ट्स एंड स्पीक्स एज इफ ही इज फ्रॉम द लॉर्ड। ही इज द लॉर्ड, दैट्स हाउ ही स्पीक्स। ये सरा और अब्राहम को मिला। और फिर आते हैं फॉलन एंजल्स जो गिर गए थे। नाउ एंजल्स के नाम देखो, एलोहिम मतलब ईश्वरी रूप जिनके होते हैं, एल, मिखाएल, गैब्रिएल। समझ रहे हो बात को? शैतान का नाम, अगर आप बाइबल को खोले, ग्रीक बाइबल को खोले, कुछ भी खोले, उसका नाम है हेलेल, ईएल। ऑलराइट? So understand, these are forms, they all came from God. They all came from God. ये ऐसे ऑपरेट करता है। अब जब प्रॉफिटेस प्रेयर करती है, प्रॉफिट प्रेयर करता है, तो जो डोमिनियंस पावर्स वहां से खुदा की उस पावर जो ऑपरेट करती है, रीजन्स के ऊपर ऑपरेट करती है, वो प्रोफेटिकली बात करते हैं मैन ऑफ गॉड से, वुमन ऑफ गॉड से। वो टेरिटोरीज को, प्रिंसिपैलिटीज होते हैं एक, ठीक है, प्रिंसिपैलिटीज रीजन के ऊपर काबू लाते हैं। दिस रीजन इज फॉर दिस रीजन हैज दिस लेवल ऑफ प्रेयर। अब जब प्रॉफिट किसी के साथ बात करता है, होली स्पिरिट एम्पावर करती है, वो प्रिंसिपैलिटी उसको अथॉरिटी देती है कि इस रीजन के ऊपर, डेब्रा इजराइल के ऊपर तुझे प्रेयर करनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग चर्च ऑफ गॉड? सिस्टर नीना आप इंटरसेसर है, इस रीजन के ऊपर एक प्रिंसिपैलिटी ने, खुदा के दूत ने आपको वर्ड दिया, खुदा के होली स्पिरिट ने आपको वर्ड दिया। दूत आपकी मदद करेंगे to help you guide in that whole territory when you pray, when you speak. Lord, I bless my children. Lord, I bless my daughter's school, my son's school. Lord, I bless our church community. Lord, I bless. This is how men and women of God operate. Okay? Constant communication with God, constant communication with heaven. Now the third cheese, third, prayer ka realm, stillness. स्टिलनेस, ठहराव के साथ बैठे रहना, खड़े रहना। पहले क्या था? पहले हमने देखा स्टैमिना, फिर हमने देखा असेंशन, तीसरा है स्टिलनेस। Women, when you are in stillness, do you know what this means? It means बाइबल आपके जीवन में सच्ची हो चुकी है। If you look at निर्गमन की बुक एक्सोडस, आप इसको देखिए, वर्स देना है बस आपको कि समझे कि स्टिलनेस का मतलब क्या है। स्टिलनेस मतलब एक्सोडस 14:13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। Amen? Stillness. Do not fear, stand still and watch. Let your eyes see what the Lord is about to do.
The enemies that you see today, you will not see them tomorrow. Stillness. आत्मा में ठहराव आ जाना एक. Now when you are so in prayer, आपकी एंजाइटी, आपके पैनिक अटैक, आपकी सोचनी बदल जाती है. इतने थॉट्स अब वो बदल जाते हैं. मैंने बोला ना, गॉसिप को प्रेयर में कन्वर्ट करो. Take gossip, convert it into prayer. Now, for stillness, take your anxiety, take your nervousness, take all those thoughts and convert it into worship. Convert it. Use that power. It is a form of power. ये शक्तियाँ हैं. ये एनर्जी बोलते हैं इसको. अगर मुझे एंजाइटी है, यू नो सॉल राजा, वो क्यों दाऊद को बुलाया करता था और दाऊद क्यों वर्शिप करता था? बिकॉज द एंजाइटी वुड गो अवे. अब अगर प्रेयर वाला सॉल होता, अलग तरह का सॉल होता, वो खुद वर्शिप करके एंजाइटी को कन्वर्ट कर सकता है. रात को नींद नहीं आती, वर्शिप करो नीचे जाके. एंजाइटी है मुझे, ऐसे मन हिल रहा है. If your heart is pounding like this, you can't sleep, you can't focus, you can't talk. Start praying, start worshiping. Create stillness. Calm it down. खुदा जब आपको उस पावर को यूज करने देगा ना, you'll see, okay, now my spirit knows how to move. My spirit man knows how to operate. बहुत लोग जो पहले गुस्से वाले उनके स्वभाव होते हैं, बाद में बदल जाता है, शांति वाला कैरेक्टर और नेचर आ जाता है, प्रेयर के द्वारा आ जाता है, धीरे धीरे आता है लेकिन आ जाता है. वो क्यों आता है? बिकॉज उस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बना लिया है. सो नाउ स्टिलनेस enters his body and stillness is a form of prayer. जब लोग बाइबल में पैनिक करते थे, मेरी बेटी मर गई है, मेरे बेटे को ऐसे हो रहा है, यीशु मसीह कहते थे कि calm, चलो चल के देखते हैं, let's go, relax. वो सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में रोते थे. That's what you need to hold inside of you. Alright? Stillness और कैसे होती है? अगर लूका की इंजील को देखें, in the book of Luke, chapter 1, in Luke chapter 1, स्टिलनेस, आत्मिक स्टिलनेस मतलब एक ठहराव है मेरे मन को. अपने सारी बॉडी की जो बैड एनर्जी है ना, उसको आपने कन्वर्ट करना है वर्शिप में. खुदा निकाल इसे, अभी निकाल, मैं वर्शिप करती हूँ, वर्शिप करता हूँ. दाऊद अपनी बहुत सारी सोचों को, विचारों को वर्शिप में बोलता था, गाता था और नाचता था. राइट? अब बाइबल में जब मरियम के साथ, I was talking about angels, right? मरियम के पास एंजल गैब्रियल आता है. एंजल गैब्रियल says, Mary, you are highly favored, क्योंकि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो महान होगा. मरियम कहती है, लेकिन मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, I don't know anybody. How can I give birth? What does the Holy Spirit, what does the angel say to her? What does the angel say to her? Can you read it for me? 135? 134, 135. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. Amen. I can't do this. I don't know anybody. I can't do this. So instead of causing chaos, creating chaos, she listens to the words of the angels. And the angel says what? आज से परम प्रधान की शक्ति तुझ पे साया करेगी और पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा. The Holy Spirit will come. It will empower you. Amen. You know stillness किस बात में है?
कि परमेश्वर अपने काम को करने जा रहा है। मैं वो बर्तन बनूंगी जिसके द्वारा परमेश्वर करेगा, और मैं खौफ नहीं करूंगी, मैं डरूंगी नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के ऊपर भरोसा करूंगी कि वो मुझे भरेगा, मेरे ऊपर साया करेगा। दिस इज स्टिलनेस। डू यू नो व्हाट एल्स इज स्टिलनेस? जब एलिजाबेथ जन्म देने वाली थी और जकरिया जब बोलने वाला, ही सेड आई डोंट हैव फेथ, और दूत ने क्या किया? उसके जुबान को बंद कर दिया, राइट? What happened? What did this woman do? Prophetic woman, इसने क्या किया? एलिजाबेथ ने क्या किया? जब नाम रखना था यूहन्ना का, she wrote John, यूहन्ना। और सब कहते हैं कोई तुम्हारी फैमिली में यूहन्ना नहीं है, तुम जकरिया इसका नाम रखो। She wrote John। और जब उसके पति की तरफ देखा, then what happened? He said he wrote John, क्योंकि उसका मुंह बंद था। फिर क्या हुआ? उसका मुंह खुल गया। हालेलुया। In stillness you will unlock many things. In stillness, these prayerful women, why did God choose Mary and Elizabeth? They are prophets of Zion. Are you understanding? They are prophets from Zion. Many things God will reveal to the woman before he reveals to the man. जब सैमसन born होने वाला था, जजेस की बुक में, when Samson was about to be born, अब जानते हो बाइबल में सैमसन की माता का नाम नहीं लिखा। The Bible doesn't say Manoah's wife's name, but the angel would only speak to her. दूत सिर्फ उसके साथ बात करता था, और वो भाग के अपने पति के पास, she would run to her husband, hey look, the angel said this to me. So he said, okay, next time जब angel आया, tell me. Next time angel आया, फिर से इंस्ट्रक्शन दी, और फिर वो पूछता है तुमने मेरी वाइफ को क्या बताया? And he says, उसको पता है जो मैंने उसको बताया है, she will take care of it. He doesn't even repeat it. He says, just take care of your wife. Just make sure she fulfills her calling. तो मदर की कॉलिंग कभी भी खत्म नहीं होती, आप जानते हो। She is so special. The mother is always on call for the kingdom of God. तो उसको देखना है सैमसन कैसे बड़ा होता है। और फिर स्पिरिचुअल वुमेन आपके जीवन में, मेरे भाई कितने हैं यहाँ पे, आपके जीवन में स्पिरिचुअल वुमेन आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर को बोला गया था मेक श्योर हिज हेड इज नॉट शेव्ड। और फिर दलाइला आती है, दलाइला क्या करती है? उसकी पावर को किल कर देती है। लेकिन आप में से बहुत सारे प्रोफेटिक और स्पिरिचुअल हैं जिनको प्रोफेटिक फैमिलीज को जन्म देना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द वुमन ऑफ गॉड इज फिल्ड एंड शी इज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यू नीड टू मेक श्योर आप जिसको डेट करते हैं, जिसको चूज करते हैं, जिसके साथ आप समय बिताते हैं, वो सच में एक वुमन ऑफ गॉड हो। भाई सुन रहे हैं सब? अगर नहीं है आपको चर्च में लेके आना है, हमें बनाना है उन्हें, स्पिरिचुअल वुमेन बनाना है उन्हें, वरना बहुत सारी डिलाइलास, जेज़ेबेल्स, हेरोदेस लाइफ में आ जाती हैं। वो आपकी पावर को किल कर देती है, वो आपकी अनॉइंटिंग को किल कर देती है। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। यू नो सुलेमान की बुद्धि इतनी थी, सुलेमान का ऑरा बोलते हैं इतना ज्यादा था। वो कहता है, वो खुद सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 उसमें बोलता है कुंवारियों से बचना है, अपने मसे को बचाना है। Listen to me now. You want to maintain your anointing, your Holy Spirit. You want to maintain your power. आपको गाने में मसा चाहिए, आपको बोलने में मसा चाहिए, आपको काम में मसा चाहिए. You need to have a woman of God. You need to make sure a spiritual family comes out of you. अगर नहीं है वो spiritual, तो वो आपके मस्से को किल करेगी. समझनी है ये बात. सुलेमान की माता ने उसको बताया, Solomon's mom, so much wisdom. You know, सुलेमान राजा बनने से almost miss कर गया. He almost missed it. कोई और पार्टी मना रहा था कि मैं राजा बन गया हूं, लेकिन उसकी माता गई दाऊद के पास. She says, मेरे राजा, दाऊद से बात कर रही है, तूने कहा था कि सुलेमान ही राजा बनेगा.
अगर मदर प्रोफेटिक नहीं है, अगर मदर को इस्राएल का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, तो वो राजे महाराजे नहीं बना सकती। लेकिन अगर मदर को पूरे इस्राएल का फ्यूचर पता है, तो वो प्रॉफिटेस और प्रॉफिट्स बना सकेगी, वो वर्शिपर्स बना सकेगी। यू नीड टू मेक श्योर योर चिल्ड्रन आर रेज्ड करेक्टली। यू नीड टू मेक श्योर, लाइक बैतशेबा ने क्या सोचा कि मेरा सुलेमान ही उस चेयर पे बैठेगा, वो दूसरा नहीं बनेगा। और सुलेमान ने सारी बुद्धि को मांग लिया, हर चीज की बुद्धि को मांग लिया, ना कि धन कमाने वाली, लेकिन सारी जितनी पंडितों के पास, याजकों के पास जितनी बुद्धि होनी चाहिए, ऑल एवरीथिंग ज्ञानियों के पास जो बुद्धि थी वो सुलेमान के पास थी। सुलेमान की जिंदगी के बारे में कभी भी पढ़े, सुलेमान के पास चाबियां थी, सुलेमान की किताबें हैं, सुलेमान की चाबियां जानते हो अरब नेशंस में आपको मिलेगी। और वो क्या कहती है, वो बुद्धि बताती है। नीति वचन की बुक को खोले, वो सारा सुलेमान की माता है। वो क्या बताती है, कहती है अपने पिता की शिक्षा को ना त्याग, अपनी माता की बुद्धि की बातों को ना त्याग, अपने गले का हार बनाना है, मेक इट लाइक योर नेकलेस। इससे तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। Hallelujah. You will gain favor of God and man if you take your mother's, your father's teachings and make it a necklace. Bind it together. इसको बांध ले, तो तू परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा, तू मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। You will reign on this earth like God wanted you to. You will have dominion. Hallelujah. You see how powerful women are? Powerful. They're builders. So women, we bless you today. जितने भाई हैं, हम आपको कहते हैं अपनी माता के लिए प्रेयर करो। Pray for your mother. Pray for your sisters. Pray for your sister. Her calling is very big. You need to pray for your sisters. अब जितना खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, if you love God and His words, anything is possible for you. You know, Bible में लिखा, I think it's in Exodus, it says, if you honor your father and mother, the land that God has placed you in, you will live in that land long, for a very long time. अपने माता और पिता की इज्जत करना, तो जिस देश को तेरे यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसमें तू लंबा जीने पाएगा. That's what it says. These are the keys to long life, favor from God. Amen. And women, जितनी औरतें हैं अपनी आंखों को बंद करें, जितने भाई हैं अपने हाथों को उठाएं, और जिस डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है कोई वुमेन बैठी है, उनके लिए प्रार्थना करें. अगर आपकी मदर, बहन, आप किसी अपनी दोस्त के लिए प्रेयर करना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कॉलिंग है, प्रेयर करें उनके लिए. Pray. God put wealth inside of a woman. Spiritual wealth inside of a woman. We bless you today. We bless you today. All the mothers in this room, we bless you today. When you pray, your prayer, your call to God will be on speed dial in Jesus' mighty name. Your prayer is a priority for the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus loved his mother. Jesus loved Martha. Jesus loved Mary. The disciples, they loved their sisters in Christ. They prayed for them. Hallelujah. Today we pray for all the women in the church, all the mothers, Lord God, a special grace over their life. A special grace over their life. Lord God, if their heart is broken, if they are tired, in your name may they find rest in this body.
May they find rest in their spirit. May they be filled with wisdom. May they be filled with revelation. May they see before trouble comes. May they be able to pray their way out of every storm. May their heart be at peace. May their children give them time, give them love. May their husbands give them time, give them love. May the Lord provide all of your needs before you ask. We will anoint you afterwards, towards the end of the service today. But I want you to know that a special oil has landed over your head today in this service. आपके ऊपर एक खास तेल उतरा है स्वर्ग से आज की मीटिंग में. आपकी कॉलिंग बदलने जा रही है. आपकी कॉलिंग आप वर्शिपर्स प्रॉफिट्स को रेज कर रहे हैं. खुदा इस चीज की अहमियत आपको बताए ताकि आप और पावर के साथ प्रेयर करें और आप और बुद्धि को ले खुदा से और उन्हें करेक्टली गाइड करें. जीसस नेम, इन जीसस नेम आई प्रे. गॉड ब्लेस यू चर्च.